علی اشرف خان میرے ساتھ موجود ہیں جو دہلی یونیورسٹی میں HOD ہیں فارسی کے. اس وقت دین دنیا ہاؤس کے اندر انجمن محبین فارسی کے نام سے ایک پروگرام انعقاد کیا گیا اور خاص جو ہے فارسی کی فروغ کے لیے تمام جو ہے محفلیں سجائی گئی. سر آپ کا سواگت خیر مقدم. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فارسی کو لے کے بچوں کے ذہن میں خاص طور طلباء کے ذہن میں آج کل جو ماحول پیدا کیا ہے اردو اور فارسی کو لے کے کہ اگر آخر میں اگر کسی کو ایڈمیشن نہیں ملتا کچھ نہیں ہوتا تو آخر میں چلو یہ فارسی کا ٹیگ لگاؤ اور آپ ایڈمیشن لے لو تاکہ اس کی سہایتا سے آپ کہیں پہنچ جاؤ. تو یہ ایسا سوچ کیوں ہے؟ نہیں دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ پہلے جو بچے ہمارے یہاں فارسی میں عام طور پر داخلہ لیا کرتے تھے وہ 12ویں کلاس تک فارسی پڑھ کے آتے تھے. جی. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب یونیورسٹی میں ایڈمیشنز کے لیے جو ذاکر حسین کالج ہے جیسے یا کہیں اور بچوں نے اپلائی کیا اور اس میں انہوں نے فارسی آپٹ نہیں کیا تو اگر ان کے پاس فارسی آپٹ نہیں کیا تو بھی اگر اسپیس ہے اس کے اندر کالج کے اندر تو وہ فارسی میں داخلہ دے دیتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فارسی کے لیے مان لیجیے ہم نے 40 سیٹیں مختص کی کہ بھائی 40 بچوں کا داخلہ میں فارسی میں کرنا ہے اور بچے آئے صرف وہاں 5. جی. تو اور جو دوسرے ڈسپلن کے بچے ہیں جو فارسی کے لیے جنہوں نے نہیں بھرا تھا ان کو بھی اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں تو وہ چاہتے نہ چاہتے فارسی پڑھتے ہیں. یعنی کوئی دلی خواہش نہیں ہے ان کی, کہیں داخلہ نہیں ملا تو اس لیے فارسی میں آ گئے. ایسے لوگ ہیں. پھر ان بچوں میں بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو نان مسلمس ہیں جن کو اردو سے کوئی شغف نہیں, وہ اسکرپٹ نہیں جانتے, وہ ہندی میڈیم سے پڑھ کے آئے ہیں. تو ایسے بچوں کو اس سے کوپ اپ کرنا جو مشکل ہوتا ہے, ان کو پڑھانا مشکل ہوتا ہے. لیکن اب مجبوری ہے, بچے ہیں ہی ویسے تو کیا کریں, ہم پڑھانا پڑتا ہے لوگوں. لیکن سر میں نے اپنے بڑوں سے سنا جو بڑے بڑے رائٹر ان کو میں نے دیکھا وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بھاشا کی کسی بھی لینگویج کسی بھی زبان کی جو بیسک بنیادی چیز ہے وہ اسکول ہے. اسکول پرائمری سیکنڈری پھر مڈل, یونیورسٹی کے پروفیسر تو بالکل لاسٹ کی چیز ہے. لیکن پروفیسر کرے تو کیا کرے, وہ اسکول کی شروعات کرے. آج اردو کا بیڑا اگر اسی لیے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو اس لیے خراب ہوئی کہ انہوں نے پرائمری میں نہیں پڑھایا اور آگے نہیں پڑھا. جب بچے پھر کیا کرتے ہیں گریجویشن میں اردو لے لیتے ہیں, اردو سے مطلب نفرت کرتے ہیں. لیکن مجبوری ہے کہ وہ کریں پڑھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. وجہ اس کی ہے جی 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 کہ اسکول میں بھی ان کو جو ہے وہ ابھی آ رہا ہوں. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے یہاں جو بچے اس طرح کے ہیں کہ جنہوں نے کبھی کوئی اردو نہیں پڑھی ہے لیکن وہ فارسی میں اگر انہوں نے چاہتے انچاہتے چاہے وہ دل سے چاہے یا نہ چاہے انہوں نے داخلہ لے لیا ہے. اب تو ٹیچر کی ریسپانسبلٹی ہو گئی نا کہ انہیں سکھائے. اب تو وہ الف سے لے کر کے یہ تک سکھائے گا نا. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ بیسک بنیادی جو نیچے لیول سے ہم لوگ کیسے شروع کریں گے فارسی؟ ہم انجمن محبین فارسی جو ہے نا وہ اصل میں یہ چاہتی ہے کہ سارے اسکولز میں فارسی کے لیے باقاعدہ ٹیچر مہیا کرایا جائے, بچے 6ٹھی کلاس سے فارسی پڑھیں. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید فتح پوری اسکول اور دوسرا اینگلو اسکول, یہ 2 اسکول ہیں جہاں پر فارسی ہے. ٹیچر کا مجھے لگتا ہے کہ اینگلو اسکول میں ابھی شاید نہیں ہے. نہیں اینگلو عربک میں تو ٹیچر ہیں, فتح پوری میں نہیں ہے. فتح پوری میں نہیں ہے, شفیق میموریل میں نہیں ہے, مظہر الاسلام میں نہیں ہے. ان 3 اسکولوں میں فارسی کے ٹیچرز نہیں ہیں. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ انجمن محبین فارسی جو ہے ان ٹیچروں کو وہاں پر کسی طریقے سے اپائنٹ کروائے یا ان کو رکھوائے یا ان کو ان کی اخراجات کو اٹھائے اور تاکہ مطلب فارسی کی وہاں پر آپ تو ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. جو ہم سے ہو سکتا ہے دامے درویش وغیرہ جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہی کر سکتے ہیں نا. اب کوئی کہے گا بھائی فارسی کے 4 اساتذہ کی ساری ان کی جو ہے مہینے کی تنخواہ ہم دے دیں تو ہم نہیں دے سکتے. میں بھی آپ کو سن رہا تھا, آپ نے کریئر کی بات کری کہ فارسی میں کریئر کو لے کے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ لوگ پڑھ لیں, کریئر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. کریئر ہے کیوں نہیں, میں نے یہ وہاں بھی تقریباً بھی میں نے یہی کہا. پھر میں یہاں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں اس کی طرف کہ اگر آپ نے فارسی کو توجہ سے پڑھا تو آپ کے لیے کام کی کوئی کمی نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن شرط یہی ہے, شرط اولین یہ ہے کہ آپ قاعدے سے پڑھیں اسے. آپ فارسی تو جانتے ہیں, انگریزی آپ ایک لفظ نہیں جانتے, یا انگریزی جانتے ہیں فارسی ایک لفظ نہیں جانتے تو اس کی قدر نہیں ہے. قدر جب ہے کہ جب آپ فارسی بھی اتنے ہی جانیں انگریزی بھی اتنی ہی جانیں. صورتحال میں ایک بھیڑ ایسی جو انگلش کی طرف دوڑتی بھاگ رہی ہے, انگلش کی طرف دوڑے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ فارسی پڑھے نا تو کام ہے اس کے لیے. کیونکہ ان کو وہ لگتا ہے کہ وہ کیریئر کا ایک حصہ ہے, اس میں زیادہ اپرچونیٹیز کے مان لیا میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ کیریئر اپرچونیٹی انگریزی پڑھنے سے زیادہ ہے. لیکن فارسی میں بھی اگر ان کو اگر
सिंसियरली वो फारसी पढ़ेंगे तो मौजूद है और दीन दुनिया हाउस के अंदर मौजूद है। यहाँ पर अंजुमन मोहिबान फारसी के नाम से एक अंजुमन बनाई गई है, एक फारसी की अंजुमन जो है वो सजाई गई है और इसके सदर जो है वो तैयब सर हैं। तैयब सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तैयब सर एंग्लोरवी स्कूल के अंदर लेक्चरर की हैसियत से आप पढ़ाते थे, वहाँ से आप सुबदोश हुए हैं और आपने बहुत खिदमत अंजाम दी फारसी को लेकर जो है। तो जो अंजुमन आपने सही, इसका क्या मकासद है सर? बुनियादी तौर पर ये हमारे जो नूर साहब हैं, इनकी बेटी ने उनके जहन में यह ख्याल डाला कि बच्चे फारसी के नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया, मुझे भी इनवाइट किया। नूर सर स्कूल से क्या कॉलेज से? नूर सर तो यहाँ पुरानी दिल्ली से हैं। उन्होंने मुझे भी बुलाया, बहुत सारी बातें हुई। जिन हालात में अब आजकल ज़बानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है या जिस वो मकाम तक पहुंच गई हैं, तो उसमें बुनियादी ज़रूरत सबसे पहली तो ये थी कि उनकी तादाद बढ़े। अब उनकी तादाद बढ़ाने के लिए उनके अंदर शौक़ पैदा हो, जज्बा पैदा हो, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई। फिर मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि आप कुछ लोगों को जोड़ के एक तंजीम, एक अंजुमन कायम कर लें और फिर हम लोग मिलकर जो है कुछ काम करते हैं। स्कूलों में चलेंगे, जहाँ असातिज़ा नहीं हैं उनका इंतज़ाम करेंगे। उसके अलावा अगर पैसों की कुछ किल्लत है तो उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चों में शौक़ हो, उनको जो है ज़बानों की अहमियत के बारे में बताया जाए। इन सब को लेकर जो है ना फिर ये अंजुमन की तश्कील अमल में आई और आज उसका ये उन्होंने एक इनाग्रल फंक्शन किया जो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लोग इसमें आए, काफ़ी कामयाब। लेकिन सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उर्दू और फारसी को लेके एक बड़ी जो सोच और जहनों में, जो तलबा के जहनों में है कि कुछ ना मिले तो ये मिले, फारसी मिले या मजबूरी के तहत फारसी में एडमिशन ले लो, ना मिले तो या उर्दू में एडमिशन ले लो, ताकि उसकी सहायता से हमें किसी कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन मिल जाए। ऐसा है, लेकिन ये एक हकीकत भी है जी। देखिए, इन ज़बानों में उनको नंबर अच्छे आते हैं, जिससे नतीजे से उनकी मेरिट बढ़ जाती है और मेरिट बढ़ने के नतीजे में ऐसे कई बच्चे हैं, हमारे दौर के भी हैं, जिन्होंने BA पास कोर्स में चूँकि उनकी परसेंटेज बढ़ गई उनको दाखिला मिल गया। अच्छा, चूँकि ये ज़बानें हैं, इन पर उनको अबूर हासिल हो जाता है, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं तो नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं। ये अपनी जगह पे एक हकीकत है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो ज़बान के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है। शौक़ तो बुनियादी चीज़ है ना। हकीकत तो यह है कि आज की जो महफिल हुई है, प्रोग्राम हुआ है, ये इसमें लोगों की जो दिल से बात होती है। लोग चाहते हैं कि जो ज़बानें रवा ज़वाल हैं, पीछे जा रही हैं, उनको दोबारा तरक्की की तरफ लेके जाया जाए। उसके सिलसिले में ये एक छोटी कोशिश है, पहला कदम है। इंशाअल्लाह ताला आगे और मज़बूत रवैया रहेगा तो और अच्छे नतीजे आएंगे। मेन बात क्या है कि जो तुलबा हैं वो लैंग्वेज उर्दू, फ़ारसी, अरबी में दाखिले कुछ जगहों पे तो बिल्कुल नहीं ले रहा है, कुछ जगहों पे कम ले रहे हैं। उनको इस तरह मुतवज्जे कराना है और उनको बताना है कि इन लैंग्वेजेस का भी आगे बहुत स्कोप है। अभी तो बच्चों के जहन में यह है कि हम उर्दू, फ़ारसी पढ़ने के बाद आगे ये हमारे लिए काम की चीज़ नहीं है, हमारे मुस्तक़बिल में काम नहीं आएगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। वक्त बदल चुका है, आगे इन ज़बानों का भी बहुत स्कोप है। जो है वो जावेद साहब है। जावेद साहब, ये अंजुमन मोहिबान फारसी महफिल सजाई और ख़ास तौर से फ़ारसी के फ़रोग़ के लिए काम किया जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत करी, उन्हें बहुत सारे तरीके बताए और वो आज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर काम करेंगे। ये तमाम चीज़ें किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ज़बान, पहचान और विरासत, अगर मैं इन तीनों लफ्ज़ों जोड़ूं तो ये विरासत कहलाएगा। और विरासत वो होती है जिससे किसी भी कौम की पहचानी जाती है और इसका जिंदा रहना उस कौम का जिंदा रहने की निशानी है। बुजुर्गों का कहना है और बराबर ये चीज़ हमारे सामने महसूस होती है इन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कि जिस नस्ल को, जिस कौम को हमें ख़त्म करना हो, उसकी ज़बान को मिटा दो। तो ये अपने आप के अंदर एक बहुत नायाब कोशिश है और ये ऐसी कोशिश है कि मैं ये कहता हूँ इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा जज्बा चाहिए, बड़ा दर्द चाहिए कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं, हम इसके लिए कदम उठा रहे हैं। और मैं इसके लिए ताहिर नूर साहब का बेहद
ममनून हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा जावेद साहब, जी, हमारे जी। पुरानी दिल्ली के 4-5-6 स्कूल, एंग्लोरबिक स्कूल, मजहरुल इस्लाम, फतेहपुरी, शफीक में, एंग्लोरबिक छोड़ के तमाम जगह जो है वो फारसी के टीचर नहीं है, पता है? फारसी के टीचर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। और ये तो सेकेंडरी, पहली चीज़ जो हमारी मादरी ज़बान उर्दू उसका भी इतना बुरा हाल है। किसी को आज ये कह दो उर्दू पढ़ने पढ़ाने को, घर से हमारी उर्दू ख़त्म होती जा रही है। इंग्लिश की तरफ लोग ऐसा दौड़ भाग रहे हैं कि पता नहीं कौन सा इनकलाब आने वाला है। सबसे बुनियादी और दुख की बात यह है कि हमने एजुकेशन को रोजी का जरिया बना दिया, और जब हम रोजी की तरह अपनी तालीम को और अपनी विरासत को देखेंगे तो फिर विरासत की कोई कदर नहीं रहेगी। अब ज़रूरत इस बात की है कि वो अट्रैक्शन, वो ज़रूरत, और इस भागती दौड़ती दुनिया के अंदर ये मैसेज हम उन बच्चों तक पहुँचाएं जो बच्चे इस ज़बान को छोड़ रहे हैं और इस विरासत को खो रहे हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत है इस बात की कि वो वसाइल जो उनकी निगाहों से दूर हैं, वो वसाइल, वो ज़राए उन बच्चों को वहाँ तक हम उनको पहुँचाएँ कि वो समझ सके इसकी क्या कदर और अहमियत है। जैसे कि यहाँ पर बातचीत हुई और जो बड़े कीमती अशख़ास ने इस बात को रखा कि इसके अंदर फ़ारसी ज़बान के अंदर बहुत से ऐसी चीज़ें और ऐसे ज़राए मौजूद हैं जो बहुत ही कीमती ज़रूरत बन रही है उन मल्टीनेशनल कंपनीज़ की, उन बड़े बड़े मेडिकल सेंटर की, जो इस ट्रांसलेटर चाहिए जिनको, उनको ऐसे बच्चे और ऐसे तालीम याफ्ता लोग चाहिए जो फ़ारसी बोलने वाले हों। और जो भी हमारे बाहरी ममालिक से मेहमान आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, गेस्ट आते हैं, बड़े बड़े कंपनीज आती हैं, तो उनको इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है, और इंटरप्रेटर अगर नहीं होता तो वो चीज़ें किस तरह से वो डील करें। मैंने अभी प्रोफेसर साहब को एक बात ये कही कि देखिए सर, प्रोफेसर बिल्कुल भी फारसी में इनकलाब पैदा नहीं कर सकता। करेगा कौन? टीचर करेगा, प्राइमरी का टीचर, मिडिल का टीचर और सीनियर सेकेंडरी का टीचर। अगर यहाँ से बेस होगी तो तब जाके फिर वहाँ भरमार होगी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक मजबूरी है। वो ये कहते हैं कि यार देखो एडमिशन नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, एक काम करो फारसी ले लो, उर्दू ले लो, एडमिशन आपका फॉर्म हो जाएगा। अगर ये मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे स्कूल से जो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अगर यहाँ से बेसिक बुनियादी अगर फारसी नहीं होगी तो आगे फिर कैसे मजबूत विरासत कैसे कायम होगी? मैं आपके सवाल का शुक्रगुजार हूँ कि एक चीज़ जो बुनियादी मेरे दिल में अधूरी रह गई थी और मैं बोलना चाह रहा था, वो आपने याद दिला दी। मुझे बेहद खुशी हुई आपकी इस बात से, क्योंकि सबसे बुनियादी ज़रूरत यह है कि हम अपने इदारों के अंदर बुनियादी तौर से अगर फारसी पढ़ाएंगे तो ही तो आगे चलेगी। तभी तो प्रोफेसर साहब नहीं पढ़ा पाएंगे, वो तो पढ़ाना टीचर को पढ़ेगा। प्रोफेसर कब पढ़ाएगा? जब हमारा बच्चा स्कूल से फारिग होके वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंचेगा। और इसके लिए हमें, जैसा कि बहुत उम्दा मशवरा यहाँ पर ये आया कि हम अपनी मसाजिद के अंदर अपनी तालीम का दायरा कायम करें और इन चीज़ों को हम पढ़ाएं। वाकई अगर हमें फिक्रमंद और इस बात का एहसास है कि हम इसको विरासत के तौर पे इसको जिंदा रखना चाहते हैं, तो हमें हर मस्जिद को अपनी तालीम के इदारों की तरह से हमें उसको जिंदा करना होगा। पहले जो हमारे इलाकों में जो इदारे जहाँ पर फारसी थी अब नहीं है, उसको पहले जिंदा करें, क्योंकि वहाँ से टीचर नहीं है, बच्चे वहाँ एडमिशन लेने, तो उसको हम किस तरीके से हम गाइड करें, किस तरीके से उनको जो हम अवेयरनेस पैदा करें वो एडमिशन ले, या जहाँ पर टीचर की कमी उसको हम कैसे दूर करें, सब बड़ा सवाल है। देखिए, मैं सर को ही बोल रहा था, मैं अभी अपने बहुत ही अहम अशखास से मैं ये बात कर रहा था जो तालीम पे काम करते रहे और बड़ी जिम्मेदारी से काम करते रहे, कि अगर हम उन जराओं को जिंदा कर दें जहां पर हमारे बच्चों को प्लेसमेंट हो जाए और वैकेंसीज मिल जाए, तो उस चीज़ पे हम उन यकीनदानी के ऊपर हम काम कर सकते हैं कि बेटा आप इस पोजीशन पे जाओगे तो आपको ये चीज़ अवेलेबल होगी, आप इस पोस्ट पे जाओगे तो हम आपको ये जराए दे देंगे। और जब इस तरह की चीज़ें हम उनको श्योरिटी के साथ, अगर हम गारंटी के साथ में हम ये कहेंगे, तो मैं नहीं मानता कि कोई बच्चा उसके लिए काम करने से गुरेज करेगा या आगे नहीं बढ़ेगा। इन चीज़ों को कम से कम अपने उन मुस्लिम इदारों के अंदर, वाल सिटी हमारे इस दौलत से माला माल है, हमारे पास इदारे हैं, अपने इदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जहाँ पर उर्दू ज़बान बोली जाती है, उर्दू ज़बान लिखी जाती है, तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को अगर ऐसी जो लोग हैं जो माशाल्लाह बराबर एजुकेशन पे काम कर रहे हैं और एजुकेशन में काम करते हुए इस चीज़ का दर्द और फिक्र रखते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए होनी चाहिए, काम करनी चाहिए, तो वहाँ पर उन स्कूलों के अंदर अपने तौर से हमें टीचर रखने चाहिए अपने फंड से, और वो सोसाइटियाँ, वो टीमें वहाँ पर जाएं और उन इदारों में कहें कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये ज़बान को शुरू कर देना है। हम आगे हम इसके टेस्ट का इंतजाम कराएंगे, आगे हम इसको क्वालिफाई कराएंगे, आगे हम वैकेंसी तक हम इसको दिलवाएंगे। तो अगर ये चीज़ें, ये इम्पोर्टेंट है कि जहाँ बंद हो रही है पहले वहाँ शुरू करा जाए, जहाँ टीचर नहीं वो अवेलेबल कराया जाए। वहाँ पर बुनियादी बात यह है, अवाम से इदारा चलता है, बिल्कुल, इदारे से अवाम नहीं चलती।
जब एक अवाम उसके अंदर एक जो है जब पब्लिक का एक कहना चाहिए इस चीज़ का दबाव जाएगा तो इदारा भी इस चीज़ को जो है शुरू करने के अंदर मददगार साबित होगा, आपकी बात को भी मानेगा और उसको आप चलाने में कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन देखिए सबसे बुनियादी चीज़ यह है जो यहाँ पर हमारे मोहतरम शकील साहब यह वहाँ मौजूद हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि आप बहुत ही कीमती हस्ती हैं, एजुकेशन के ताल्लुक से बड़ा काम करते हैं। और ताहिर साहब की यहाँ पर ताहिर नूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आपने जिस चीज़ की बुनियाद डाली कि एक काबिल टीम और ऐसी टीम जो इसके लिए हमारे वैकेंसीज के ऊपर काम करे, इसके वसाइल के ऊपर काम करे और इसके मेजरमेंट के ऊपर काम करे, उसका हमें यहाँ पर उसकी बुनियाद डालने की ज़रूरत है। और वो एक ऐसे मुखलिस टीम हो जो हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहे और इसके लिए मददगार साबित हो। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी पहल है। मैं पुरानी दिल्ली की तमाम आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग आगे आएँ और ऐसी जो चीज़ें शुरुआत हो रही है ये अपने आप के अंदर एक बहुत उम्दा कदम है, हमारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहतर कदम है। और अगर हम इसके लिए काम करते हैं तो हम सबसे अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने में हम बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जिस इंसान को आप फारसी के फ़रोग के लिए काम किए जाने का फ़ैसला लिया गया है। ख़ास तौर पे फ़ारसी आहिस्ता आहिस्ता हमारी यूनिवर्सिटी से, स्कूलों से ख़त्म होती चली जा रही है। इस वक्त मेरे साथ जो है फ़ारसी के उस्ताद ताहिर हसन साहब है। ताहिर साहब, आपकी आज की जो महफिल थी फ़ारसी के फ़रोग के लिए, तो आप किस तरह तमाम चीज़ों को देखते हैं? देखिए, जहाँ तक फ़ारसी का ताल्लुक़ है, हमारी दिल्ली के अंदर ख़ास तौर पर पुरानी दिल्ली में जो 5 इदारे थे, उर्दू मीडियम स्कूल थे, उनमें अरबी, फ़ारसी, उर्दू ये तीनों ज़बानें पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी और बहुत अच्छा स्कोप था इनका। लेकिन ज़माने की सितम ज़रीफ़ी कहिए या कौम का ज़वाल कहिए या वक्त और हालात की मजबूरी, इन तीनों ने मिलकर ये किया कि स्कूलों से रफ्ता रफ्ता फ़ारसी का जो उस्ताद रिटायर हुआ, फिर उसकी जगह दूसरे उस्ताद का तकर्रुर नहीं हो पाया। ये कहें कि डिपार्टमेंट ने सेंक्शन नहीं किया। ये फतेहपुरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात बता रहा हूँ, जहाँ अरबी, फ़ारसी, उर्दू तीनों ज़बानें। अपने पुरानी दिल्ली के फतेहपुरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मज़हरुल इस्लाम, शफीक में 3-4 स्कूलों में फ़ारसी के उस्ताद नहीं है। सिर्फ फ़ारसी के उस्ताद अगर हैं तो वो एंग्लो अरबिक स्कूल के अंदर है। नहीं, एंग्लो अरबिक में भी जो थे वो रिटायर हो गए और अब कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर हैं या पीटीए की तरफ से रखे जा रहे हैं। और फतेहपुरी स्कूल में तो अब ये सब्जेक्ट ही ख़त्म हो गए, तीनों लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज के। उर्दू बराए नाम है, क्योंकि उर्दू अब इलेक्टिव ना होकर इलेक्टिव कोर दी गई है 11th और 12th में, और बेशतर बच्चे जो उर्दू के थे उनको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन आप हिंदी में सितम ज़रीफ़ी देखिए कि हिंदी में पीजीटी अपॉइंट कर दिया गया, जबकि हिंदी पीजीटी स्कूल की तारीख़ में 1927 से लेकर अभी तक कोई नहीं था। लेकिन फर्स्ट टाइम हिंदी पीजीटी तकर्रुर किया गया, प्रमोट किया गया। और अब मुझे उम्मीद है, जहाँ तक मेरे इल्म का ताल्लुक़ है, कि शायद अब उर्दू पीजीटी नामुमकिन हो। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर जो महफिल थी तो उसमें एक निर्णय ये लिया जाए कि जो स्कूल है, जहाँ अगर प्राइमरी या मिडिल की अगर हम बात करें, अगर किसी बच्चे की बुनियाद अगर बनानी हो तो उसका तो प्राइमरी से बनाना पड़ेगा कि कॉलेज तो बात की चीज़ है, कॉलेज तो बात कीजिए। आप खुद टीचर रहे हैं तो आपको नहीं, फ़ारसी अरबी प्राइमरी से नहीं पढ़ाई जाती, स्कूलों में 6ठी से शुरू होती है, लेकिन वो प्राइमरी स्टैंडर्ड की ही स्टार्ट होती है, अरबी भी और फ़ारसी भी। उर्दू प्राइमरी से पढ़ता आता है बच्चा तो वो कंटिन्यू रहती है, लेकिन अरबी फ़ारसी इब्तदा से पढ़ाई जाती है हुरूफ तहज्जी से, अरबी फ़ारसी दोनों। लेकिन अब क्या किया जाए कि कुछ ज़माने के हालात ऐसे हो गए, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी बन गई है कि जिसके अंदर किसी तरीके से उर्दू के साथ साथ अरबी पर्शन का होना मुमकिन नहीं रहा, जो फार्मूला इम्प्लीमेंट किया गया उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा यहाँ कि उर्दू और फ़ारसी और अरबी ये तीनों सब्जेक्ट, तीनों लैंग्वेज ऐसी थी कि जिससे अच्छा खासा परसेंटेज का मामला बच्चों का डेवलप होता था और उससे ब्रॉड होता था और उनका परसेंटेज लेवल बढ़ता था, जिससे अच्छी जगह उनका एडमिशन होता था। एक और बात मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगा कि उर्दू पर्शन
को आम तौर पर अरबिक को ये कहा जाता है कि मुस्लिम की ज़बान है, मुसलमानों की है, हम इसको सीख के क्या करें, अब इसमें कोई स्कोप नहीं है। लेकिन ये देखिए आप कि अभी कोविड के बाद गालिब इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट टाइम ये फैसला किया कि हम उर्दू और फ़ारसी ऑनलाइन पढ़ाएंगे और इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ाएंगे। और इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने पढ़ाने के लिए इस खाकसार का तकर्रुर किया और 2021 से 2025 आ गया, कंटिन्यू क्लास चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर। और बेशतर उर्दू और पर्शियन पढ़ने वाले गैर मुस्लिम हैं। अच्छा, बड़ी बात है। और गैर मुस्लिम है, जब मैंने उनसे इंटरनल इंडोर इंडिया के लोगों से मालूम किया, दिल्ली के लोगों से मालूम किया जो गैर मुस्लिम हैं कि भाई आप उर्दू और पर्शियन क्यों पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने जो बताया बात में हिल कर रह गया, शशदर हो गया कि क्या इस तरह से भी रोज़गार से के मौक़े हासिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया होटल्स में और मेडिकल ग्राउंड पर जो हमारे यहाँ बड़े बड़े अस्पतालों में, अपोलो में, एस्कॉर्ट में और होली फैमिली में और दीगर अस्पतालों में जो लोग आते हैं मेट्रो में, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, उज़्बेकिस्तान से, यहाँ से लोग आते हैं, उन लोगों को ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है और वहाँ की ज़बान पर्शियन है। उन लोगों को इस तरीके से किस तरह बहुत अच्छे मौक़े मिल रहे हैं, तो इससे उनका रोज़गार भी वाबस्ता हो रहा है और वो लोग पर्शियन सीख भी रहे हैं। और हमें इससे बिल्कुल लाइल्मियत है, पता ही नहीं है, ये सोचते हैं कि इसमें रोज़गार ही नहीं है और इंग्लिश की तरफ सब दौड़ भाग रहे हैं। हम करेंगे क्या? हम आमतौर पर वही बात कि जो एक कहावत गलत रीत से चली आ रही है कि पढ़ो फ़ारसी बेचो तेल, ये देखो कुदरत के खेल, जबकि है जो इसकी असल बुनियाद है वो है पढ़ा है पारस बेचे तेल, ये देखो कुदरत के खेल। तेली ने पारस जो पत्थर है कसौटी का, जो सोने को परखता है, कीमती होता है, और वो